Hello students, welcome to science class. We will study chapter 4 solids, liquids and gases. This video is part 1. In this video we will learn new words and keywords. Let us learn new words. The first new word is solid. Example, ice. Second, liquid. Liquid example, water, oil, juice, etc. Third, gases. Gases example, smoke, air. Next, particles. Particles are very small substances which is present in everywhere. Steam. Steam is a type of gas, vapor. Next, evaporation. Evaporation means changing liquid into gas on heating. Next, condensation. Condensation means changing gas into water on cooling. Melting. Changing ice into water is called melting. Next, solidification. Solidification means changing liquid into solid on cooling. Next is soluble. Soluble example, salt and sugar which can dissolve in liquid. Next, insoluble example, sand in water which cannot be dissolved. Next, filtration. This is the process of filtration. Next, sedimentation means settle down of insoluble substance. Next, decantation, separation of clear water from the insoluble substance. Solute. Solute are the substance which dissolve in liquid. Next, solvent. Substance which dissolve in liquid, that liquid is known as solvent. जो solute dissolve होता है उसे हम solvent बोलते हैं. Next, solution means solute plus solvent becomes solution. Solute और solvent दोनों मिलके solution बनाते हैं. Now let us learn the keywords. First keyword is matter. Any substances that has mass and occupies space is called matter. मैटर का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस कवर करता है, उसे हम मैटर बोलते हैं. नेक्स्ट, सॉलिड्स मीनिंग सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. सॉलिड्स मतलब वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली यानी कि एक दूसरे से बहुत नज़दीक अटैच होते हैं, पैक होते हैं. सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम सॉलिड्स बोलते हैं. नेक्स्ट, लिक्विड्स. सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. लिक्विड्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं होते, यानी कि बहुत नज़दीक जैसे सॉलिड्स में होते हैं उतने नज़दीक पार्टिकल्स नहीं होते हैं. ऐसे सब्सटेंस को हम लिक्विड्स बोलते हैं. नेक्स्ट, गैसेस. सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. गैसेस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें पार्टिकल्स लूजली यानी कि बहुत दूर पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स.
सो ऐसे पार्टिकल्स को हम गैसेस बोलते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज सॉल्यूट। मीनिंग ऑफ सॉल्यूट इज द सॉलिड दैट dissolves in a liquid is called the solute। सॉल्यूट का मतलब है ऐसा सॉलिड जो कोई भी लिक्विड में डिज़ोल्व होता है, उसमें मिक्स हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस को हम सॉल्यूट बोलेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड इज सॉल्वेंट। मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट इज द लिक्विड in which a solid dissolves is called the solvent। सॉल्वेंट का मतलब है ऐसा लिक्विड जिसमें कोई भी सॉलिड या सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, ऐसे लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। डिज़ोल्व मतलब कि वो उसमें मिक्स होता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज़ सॉल्यूशन। मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन इज़ the liquid obtained when a solute dissolves in a solvent is called the solution। मतलब सॉल्यूशन का मतलब ये है ऐसा लिक्विड जो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद मिलता है, ऐसे लिक्विड को हम सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड इज soluble substances। Meaning of soluble substances: substances that are dissolved completely in a solvent to form a solution। soluble substances का मतलब होता है ऐसे substance जो solute में पूरा dissolve हो जाते हैं solution बनाने के लिए। Next, insoluble substances: substances that do not dissolve completely in a solvent। insoluble substances का मतलब है ऐसे substances जो पूरी तरीके से कोई भी लिक्विड में या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, नहीं हो सकते, ऐसे सब्सटेंस को हम insoluble substances कहेंगे। नेक्स्ट, melting। Melting meaning is the process by which a solid changes into a liquid। Melting का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड इज इवापोरेशन। इवापोरेशन मीनिंग the process by which a liquid changes into vapor। evaporation का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड जैसे कि वाटर वो वेपर या वेपर के अलावा हम उसको स्टीम भी बोल सकते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, कंडेंसेशन। द प्रोसेस by which a gas changes into a liquid on cooling। कंडेंसेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस, वेपर या स्टीम हम बोल सकते हैं, वो जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ठंडे होने के बाद, ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, सॉलिडिफिकेशन। मीनिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन: द प्रोसेस बाय विच a liquid changes into a solid on cooling। सॉलिडिफिकेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड जैसे कि वाटर या वो चेंज हो जाता है सॉलिड में, जैसे कि आइस में, ठंडे होने के बाद उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस सेटल्स डाउन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस सेटल्स डाउन, यानी कि वो नीचे कोई भी कंटेनर में नीचे वो बैठ जाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 4, न्यू वर्ड्स एंड कीवर्ड्स। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू।